So today's topic is runtime storage administration, and previously we have covered the operation and implementation on symbol table. Okay, so students, those who don't see that, they can see the links and all. Okay, which I have shared on. Okay, so see runtime storage. What is runtime storage? First question which comes in my mind is in all our mind is that compiler is what? Compiler is a program that converts a high language into what we can say into assembly language, or we can say into an easy मतलब convert करता है एक तरह से, ठीक है, the in a code which can be read by the machine, read by the your computer. देन आफ्टर दैट जो कंपाइलर आपको आपका जो कोड आता है, जो टारगेट कोड आता है आपका, ठीक है, आफ्टर दैट जब आप उस पर कोई भी प्रोग्राम उस पर रन कराते हो, ओके, यू हैव जनरेटेड वन मशीन कंपाइलर, इज इट रेडी नाउ, इट्स टाइम जब आप उस पर परफॉर्म करते हो. सो एट दैट टाइम पर जब आप परफॉर्म करते हो तो रिक्वायर्ड द मेमोरी, and who will provide the memory? The memory is provided by the operating system, whichever you have, that will provide the memory, and that is called as runtime storage administration. Ki how that memory is provided to the compiler, in what ways it will provided memory. Okay, so this is called as runtime storage administration. So before covering these two topics, where I will tell you this stack, what is that? Okay, so this is a stack means in what way there is a, you can say there is a structure with in which the operating system will provide the memory to the target code. And what is that structure? This is the structure that contains four blocks, that is code area, okay, static, global, data, stack and heap. Up now we'll discuss in details ki what they are actually. कोड एरिया, दैट मीन्स इट इज़ फिक्स साइड एंड होल्ड टारगेट कोड, जो हमारा कोड है उसको ये होल्ड करता है. अबव दैट static and global data. Static and global data, what will we do? It is also fixed, they both are fixed, but it hold constant and global variable. And ये जो दोनों का जो वर्क होता है दैट इज एट द कंपाइल टाइम. जब हम रन टाइम पे आते हैं, so that is dynamic memory allocation, in which we have heap and stack. Stack work for the local variables if your program have the local variables, and if the program having local as well as your non local variables, then the memory जो आपका allocation का structure होता है, it will be of heap. Okay, so in your last semester, that is a subject PPL, okay, and in that activation record and heap allocation and stack allocation we already studied, and if you remember that will be very helpful to you now ki how this all these things work. Okay, so when we talk about the stack, to the implementation of a simple stack allocation scheme, in which we will see it further. And second is implementation of block structure language when we talk about the heap, okay, local and non local. So we'll see one by one. So first we'll see the simple stack allocation scheme. It's very important topic because activation record can become directly, कोई भी आपके पास प्रोग्राम आ सकता है इन एग्जाम्स में, and you can मतलब they can ask you how many activation records, या उनको बनाओ what is the final output, like these things they can ask. Okay, so first of all we'll discuss this example, okay, and then I'll tell you in activation record में क्या क्या चीज़ें होती हैं. So it is a simple C program of factorial I have taken, that is main. There is int f, and for f that is factorial 3, and जिसका definition ये रहा int factor int n. Okay, now देन इसका जो रिटर्न वैल्यूज़ हैं कि अगर इफ़ एन इज इक्वल्स टू 1 तो रिटर्न 1 करेगा. ओके, इसका जो डेफिनेशन है, ओके, एंड अगर एल्स तो इट विल रिटर्न एन इंटू फैक्ट एन माइनस 1 करेगा. ओके, सो अब जब हम इसकी पूरे प्रोग्राम की बात करें तो हाउ मेनी एक्टिवेशन रिकॉर्ड वी नीडेड, हमें कितने एक्टिवेशन रिकॉर्ड हैं की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. तो सी 1 एक्टिवेशन रिकॉर्ड इज़ फॉर द मेन, जो आपका मेन कॉल होगा उसके लिए बनेगा. आफ्टर दैट 1 इज़ फॉर दिस, जब आप इस पे आएंगे इंट एफ पे आएंगे, लोकल वेरिएबल पे आएंगे, ठीक है.
सो एंड इन दैट क्या है, फैक्ट 3, दैट मीन्स क्या होगा कि फर्स्ट इट विल कॉल फॉर 3 फैक्ट 3, देन फॉर 2 एंड दैट फॉर 1, यानी टोटल हमारे 4 एक्टिवेशन रिकॉर्ड इसमें बनेंगे। ओके, नाउ व्हाट डज एक्टिवेशन रिकॉर्ड होल्ड, ये क्या होल्ड करता है? पहला होता है टेम्पररी वेरिएबल, यानी ये ऑप्शनल है। जब हम स्टैक की बात करते हैं तो देयर आर सो मेनी इसमें थिंग्स होंगी जो हमारी ऑप्शनल होगी। ओके, सो टेम्पररी वेरिएबल इज ऑल्सो ऑप्शनल। लोकल डाटा, ओके, लोकल डाटा लाइक मतलब अगर इस प्रोग्राम की बात करें, सो येस दैट एफ इज़ अ लोकल डाटा फॉर दिस मेन वन। ओके, सो जब हम इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनाएंगे तो येस वी हैव दिस फील्ड एफ हमारा लोकल डाटा। देन एक्सेस लिंक और स्टैटिक लिंक, एक्चुअली ये भी हमारा जो स्टैटिक लिंक होता है इट विल बी डिस्कस जब हम अपना हीप के बारे में बात करते हैं, बिकॉज इट रिटर्न्स टू नॉन लोकल डाटा आ जाता है। ठीक है, सो ये भी हमारा इसमें स्किप रहेगा। कंट्रोल लिंक होता है लाइक हम यहाँ पर जाएंगे, हमारा जो भी कंट्रोल लिंक मतलब ये है कि दैट पॉइंट्स टू एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ कॉलिंग, यानी कॉलिंग प्रोसीजर का ये वो पॉइंट होगा जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड में मतलब पॉइंट्स टू एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ कॉलिंग प्रोसीजर। जैसे हम जब 3 को करेंगे तो दैट मीन्स जो इसका आपका आउटपुट रहेगा, रिटर्न रहेगा, वो हमें 2 से मिलेगा, 2 का हमें 1 पे रहेगा। तो इन दिस वे नाउ एक्चुअल पैरामीटर्स, जो भी एक्चुअल पैरामीटर्स मतलब जो भी है, जैसे यहाँ पर ये इसका डेफिनेशन है, ठीक है, डेफिनेशन, देन व्हाट इज द रिटर्न वैल्यू। ओके, सो द होप दिस विल बी क्लियर टू यू। नाउ विल सी कि इसका हम पूरा देखते हैं कि हाउ विल वी प्रिपेयर द एक्टिवेशन रिकॉर्ड। ओके, सो here first of all, that is if we see in this there is first of all main, तो main का हम activation record बनाएंगे। so how will we made for the main? okay, I'll just try to keep my phone like this so that both the things can be visible. okay, आई होप सो। ओके, सो मेन के लिए जब हम बनाएंगे तो व्हाट विल बी, इट विल बी लाइक सी फर्स्ट ऑफ ऑल मेन में अगर कोई लोकल डाटा रहेगा तो दैट विल बी क्रिएटेड। अब इसमें इंट एफ इज़ अ लोकल डाटा, तो लोकल एंड एफ। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, अगर हम इसमें इसके उस पर जाएंगे, सो सी लोकल डाटा हो गया, एक्सेस लिंक इसमें नहीं होगा, डायनामिक लिंक, सी इट इज़ ये जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड मेन का है तो ये इसका डायनामिक लिंक नहीं होगा, एक्चुअल पैरामीटर भी नहीं है, एंड एक्चुअल पैरामीटर होता है डेफिनेशन। ठीक है, वो अभी इसमें नहीं होगी, जब लोकल की डेफिनेशन इज द एक्चुअल पैरामीटर ना। नेक्स्ट इज द रिटर्न वैल्यू, सो येस हेयर इट हैज सम रिटर्न वैल्यू हेयर। नाउ रिटर्न वैल्यू एंड देन द डायनामिक लिंक। अब ये डायनामिक लिंक क्या करेगा, डायनामिक लिंक एज यहाँ पर जो बताया था कि इट पॉइंट्स टू एरे ऑफ कॉलिंग प्रोसेस, यानी अब इसका जो ये है, ठीक है, इट विल कॉल टू द नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट वन क्या है, फैक्ट 3। तो नाउ सेम इसके लिए कॉलिंग होगी, दैट इज पैरामीटर क्या है, फैक्टोरियल 3। ये इसका यहाँ रिटर्न वैल्यू आएगा। ये तो मेरा पूरा सॉल्व है, लेकिन अगर आप इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे तो इन दिस आपका जो रिटर्न वैल्यू है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिटर्न वैल्यू आपका लास्ट जो आपका टॉप पर जो वैल्यू रहेगी, एक्टिवेशन रिकॉर्ड जिसका टॉप पर रहेगा वो रिटर्न करेगा डायनामिक लिंक को, और डायनामिक लिंक के पास जब वैल्यू आएगी तो वो रिटर्न वैल्यू देगा आपको। ठीक है, इन दिस वे। तो अभी इसको मान के चले कि यू डोंट हैव एनी रिटर्न वैल्यू फॉर दिस बोथ द 3, दिस एंड दिस and this, you don't have any return value. okay, so for 3 का जो भी डायनामिक लिंक होगा, तो अब ये डायनामिक लिंक क्या है, that is the activation record calling. then for 2 also same, for 1 also. अब now when it is 1, तो what, अब यहाँ पर देखो when it is 1 तो ये रिटर्न वैल्यू क्या है, एज प्रोग्राम में भी लिखा है कि इफ इन 10 इज इक्वल्स टू, तो इट विल रिटर्न 1, सो इट विल रिटर्न 1। अब यहाँ पर ये 1 रिटर्न करेगा। अब नाउ ये 1 रिटर्न किया है इसने, सो दैट मीन्स इसका डायनामिक लिंक जो है वो क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न वैल्यू, दैट मीन्स पैरामीटर क्या है 2, तो 2 इंटू, बिकॉज इसके लिए जब व्हेन इट इज 2 तो हमारा क्या है n इंटू फैक्टोरियल n-1। ओके, सो दैट विल बी, दैट इज 2 इंटू 1। नेक्स्ट इज ये इसने अपना रिटर्न वैल्यू करी, दैट मीन्स 2। अब 2 ये जो डायनामिक लिंक है यहाँ पर रिटर्न वैल्यू करेगा, दैट इज 3 इंटू 2। ओके, नेक्स्ट वन आप जाएंगे तो यहाँ पर ये रिटर्न करेगा 6 करेगा। तो इन दिस वे आपका जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड का प्रोसेस रहेगा पूरा, ये आपका कॉलिंग का स्टैक में इस तरह से
परफॉर्म करेगा. नेक्स्ट है आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेज. सी ये दैट मीन्स ये रिलेट है आपका हीप से नॉन लोकल की. अभी यहाँ पर देखेंगे भी व्हाट इज़ लोकल एंड नॉन लोकल क्या रहेगा आपका. सो सबसे पहले स्टोरेज आपका लोकल होता है, नॉन लोकल होता है. ओके यानी लोकल हैंडलिंग एक्टिवेशन रिकॉर्ड, नॉन यानी हैंडलिंग बाय स्कोप इन्फॉर्मेशन विच इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, स्टैटिक ब्लॉक स्ट्रक्चर स्टोरेज एंड डायनामिक. डायनामिक हमारे सिलेबस में भी नहीं है तो विल स्टडी और नॉट, बट विल डिस्कस हियर द स्टैटिक ब्लॉक structure storage. Okay, so how this will work. See first of all local data non local data का जो confusion है we will remove that. See local data is this, for this activation record easily आपका create हो सकता है कि for A के लिए हम create करेंगे यहाँ पे इसका local data है और ये जो भी जो return value इसकी आएगी. ठीक है, but if this is the scenario, अब इसमें देखो test ये हो गया आपका. next int A and B, for this int A and B test आपका ऐसा globally behave करेगा. okay, next x y, तो x y क्या है आपके ए बी के बाद मीन्स एक्स वाई क्या है लोकल है एक तरह से, और ए बी के लिए क्या हो जाएगा ग्लोबल हो जाएगा. ठीक है, एंड देन इन सी डी लाइक दिस. ओके सो अगर हम इसको विद एन एग्जाम्पल के तो दिस टाइप जब हमारा फ्रेमवर्क रहता है, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज नॉन लोकल भी आ गए. तो इन दैट केस हम जो आपका फ्रेमवर्क जो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं दैट इज़ दिस वन ओनली, दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग समझते हैं. सो दिस इज एन एग्जाम्पल सेम डिफाइंड. फर्स्ट ऑफ ऑल स्कोप टेस्ट इन दैट पी क्यू डिफाइंड है. पी क्यू में इंट पी. सी डोंट गेट कन्फ्यूज इन दीज टू थिंग, दिस पी एंड पी, क्योंकि आपका सी की अगर हम बात करें तो सी लैंग्वेज क्या बोलता है कि इफ़ आई राइट लाइक दिस इंट ए and int a, तो that is wrong. okay मतलब that is wrong, but in this way int p comma q and then I'm uses these braces, so it will be accepted in your C language. okay so but for p they are like local and then r के r क्या होगा p के लिए local. तो in this way these are defined. okay so one thing is very clear that int p q, so इसका ब्लॉक यहाँ से यहाँ पर ख़त्म है. okay यहाँ पर ख़त्म है, तो दैट इज़ B1 ब्लॉक हो गया है. ओके फाइन. नेक्स्ट जो हमारा B2 ब्लॉक होगा ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म होगा. नेक्स्ट मेरा B3 एंड लास्टली मेरा B4 ब्लॉक होगा. सो वन थिंग इज़ वेरी क्लियर इन दिस एंटायर सिनेरियो इज़ व्हाट, इफ़ आई वांट टू एक्सेस B4 तो इट्स ऑब्वियस first I have to access B1 then B2 and then B3 and then I can access the B4. so in stack how it actually work, so first of all int pq, so what I'm just pushing these variables. तो b कौन सा ब्लॉक था b का p का, दैट इज p का जो ब्लॉक है दैट इज B1. सो p B1, q का भी सेम ब्लॉक है B1. नाउ आई वांट टू एक्सेस दिस p, सो दैट इज कौन सा ब्लॉक है B2 एंड r ऑल्सो आई कैन push them. okay so if I want to access B4 also, so what I'm doing ki when I push them, so I just access them and I'm just popping them. okay so to reach to B4 again what I have to do, that is जो इसके लिए ग्लोबली वर्क कर रहे हैं वो मेरे को राइट अप करना पड़ेगा P B1 Q and then I can reach to B4 and then I can access Q S and T in this way. so that is the runtime storage allocation both in case of your local through the activation record as well as if we have non-local variables also, so we can do like this.